Hello everyone, in this video we will discuss all the formulas related to all chapters. So let's start our video with chapter number 1, that is GST. GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ SP plus CGST plus SGST। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। SP ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ GST ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ CGST ਐਂਡ SGST। IGST ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੈਨ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ P cross N plus I, where P stands for ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। N for number of months, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨੂੰ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ I for ਇੰਟਰਸਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ that is P into N plus 1 over 2 into 12 into R over 100. Here R is rate of interest and rate of interest always ਤੁਹਾਨੂੰ percentage ਦੇ ਵਿੱਚ given ਹੋਏਗਾ। Now move to chapter number 3rd, that is shares and dividend। share and dividend ਦੇ ਅੰਦਰ basically ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। The very first one is sum invested is equals to number of shares into market value of one share। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮ ਇਨਵੈਸਟਡ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਬॉट ਇਨਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਬॉट ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਦੈਨ ਵੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਦੈਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ is equals to number of shares into rate of dividend into nominal value of share। and the last one is return percent। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ return percent ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਮ over our investment, sum invested into 100%। ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 3rd ਦੇ ਅੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ that is commercial mathematics ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਨ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਟੈਨ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ GST ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਝ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਈਅਰਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ, that is algebra। ਐਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4th, that is ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ equals to ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਔਰ
ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ z ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣੇਗਾ? ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ r ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਹੈ x <= 5 ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਫ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਸੋ ਆਰ ਟਰਮਸ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ 1, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? 1 ਤੋਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ? 5 ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? x <5, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 5 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਚ। 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਸਟ x ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ 'ਤੇ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 'ਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ x ਸੱਚ ਦੈਟ x <= 5 ਐਂਡ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r, ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਇਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ x ਲੈਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 5 ਦੇ। ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਲੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ x, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਲੈਸ ਆ ਤਾਂ ਫਲੋ ਲੈਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ > 5 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5th, that is quadratic equation. We know that quadratic equation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ax² plus bx plus c is = 0. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2x² plus 9x minus 2 is = 0 ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ a b c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ a ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, b ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਐਂਡ c ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -2। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ b² - 4ac <। ਸੋ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਏਗਾ। ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? b² - 4ac। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਚਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ b² - 4ac। a b c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ? ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ।
अगर इनू सॉल्व करने तो बाद b² माइनस 4ac आंसर ग्रेटर दैन 0 है, दैट मीनस कोई पॉजिटिव आंसर आ जाए 5, 6, 20, 25 कुछ भी, दैन असी लिखांगे रियल एंड अनईक्वल। एंड अगर इनू सॉल्व करने तो बाद साडा आंसर लैस दैन 0 आए, दैट मीनस नैगेटिव टर्म आ जाए कोई भी, दैन असी इनू लिखते हैं इमेजिनरी, और वी कैन यूज़ द वर्ड अनरियल, बट इमेजिनरी लिख दोगे तो भी ओके। सो जो भी नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने फॉर्मूला के अप्लाई होएगा b² माइनस 4ac। और अगर असी सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 9x माइनस 2, मान लो आही स्टेटमेंट है। सो इनू सॉल्व करने के दो मैथड आ, एक तो जोड़ा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो असी स्टार्टिंग तो पढ़ते हैं अपनी लोअर क्लासिस तो, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अगर उहदे नाल फैक्टर बनते हैं तो ओके आ, बट एज जिमें तुहाडी एक्सरसाइज है एक मे बी 5D उहदे विच उन्होंने बोलिया होंदा है, एंड जो बोर्ड एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है वो की आता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर अप टू 2 डेसीमल प्लेस। सो जो भी डेसीमल प्लेस वाला क्वेश्चन आ जाए उदों कभी भी साढ़े बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मैथड अप्लाई नहीं होंदा, उदों असीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपने सम्स नूं सॉल्व करने के लिए। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की है, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करने के लिए। एंड अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं दैन आप सिंपल b² माइनस 4ac नूं अप्लाई करांगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स based on quadratic equation, totally based on word problem. So just इंग्लिश स्टेटमेंट नूं मैथमैटिकल स्टेटमेंट विच कन्वर्ट करने तो बाद आपां सेम इत्थे भी किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिकॉज चैप्टर का नाम ही की है सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशनस। सो जो भी साडी वर्ड प्रॉब्लम मैथमैटिक च कन्वर्ट होंदी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं चाहे बाय सैपरेटिंग द मिडल टर्म सॉल्व कर लो, अगर आ मैथड अप्लाई नहीं होंदा दैन असीं किहड़ा मैथड अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन दे विच की है, रेशियो तो ICSE के सिलेबस तो शुरू तो ही कट रहा है, ICSE नूं इनकलूड नहीं करती रेशियो नूं, आपां प्रपोर्शन नूं स्टडी करांगे। अपने सिलेबस तो चैक कर सकते हो तुसीं, सिलेबस विच भी प्रपोर्शन मैंशन किया गया है। सो प्रपोर्शन के अंडर टर्म्स जो आती हैं जो असीं स्टडी करनी होंदी हैं, दैट इज़ कॉन्टीन्यूएट प्रपोर्शन एंड सैकेंड वन इज़ मेन प्रपोर्शन। अगर सिंपल प्रपोर्शन अप्लाई करना होए तो साढ़े कोल एटलीस्ट 4 टर्म्स होनी चाहिए, 4 टर्म्स होणगियां फिर ही की होएगा, प्रपोर्शन अप्लाई होएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 x, बट इन केस अगर उन्होंने बोलिया है दैट 5, 2, 3 एंड x आर इन कॉन्टीन्यूएट प्रपोर्शन, मोस्टली वैसे कॉन्टीन्यूएट प्रपोर्शन दे विच 2 अननोन वेरीएबल्स होंदे आ, मान लो एक a आ गया एंड एक x आ गया। सो असीं इहनूं किवें लिखांगे 5:a। कॉन्टीन्यूएट दा मतलब ही की है जिथों टर्म फिनिश हुई उस तो ही स्टार्ट करनी है। 5:a प्रपोर्शन a:3, प्रपोर्शन 3:x। सो पहला आ वाली प्रपोर्शन सॉल्व कर लेना है, आफ्टर दैट लास्ट वाली प्रपोर्शन सॉल्व कर लेना है। मीन प्रपोर्शन का कॉन्सैप्ट यह कि प्रपोर्शन अप्लाई तो सेम करना है, जस्ट जो भी मीन प्रपोर्शन दिता है या जो मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है जो असीं सिलेक्ट करते हैं उन्होंने हमेशा इन बिटवीन रखी दा। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं फाइंड मीन प्रपोर्शन बिटवीन 5 एंड 3। सो सिलेक्ट करांगे ऑबवियसली जो फाइंड करना है, लेट मीन प्रपोर्शन इज इक्वल्स टू x। सो x की है 5 एंड 3 दे इन बिटवीन आएगा। सो वी नो दैट कि 3 नंबर से कभी भी प्रपोर्शन जी अप्लाई नहीं होंगी। सो असीं इनू की कंसिडर करते हैं
they are in continued proportion. So continued ਆ, so obviously ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ proportion ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, then ਇਹਨੂੰ solve ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ extremes. For example, we are given with 5, 2, 3 and x 4 नंबर आ, कोई कॉन्टीनेंट प्रपोर्शन की गल नहीं हुई, सो सिंपली प्रपोर्शन च लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ मीनस दैट मीनस इन बिटवीन वाले नंबर जोड़े हैं इन्हों की प्रोडक्ट आएगी, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट मीनस एंड पॉइंट जोड़े ने उन्हों की प्रोडक्ट आएगी। सो इतों ईजिली जोड़े असी अपने एक्स की वैल्यू नूं सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर के विच एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिहदा बोर्ड एग्जाम के विच हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज़ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। हर ईयर कोई भी ईयर का 10 ईयर अगर तुसीं चक्को उहदे विच देखो कि उहदे विच एक क्वेश्चन जिहड़ा है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का जरूर आया होंदा है, एंड MCQs ते आने हैं। सो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नूं अप्लाई करन दा मैथड की है। फॉर एग्जाम्पल सानूं टर्म दित्ती है 5a + 3b ओवर 5a - 3b। ऊपर प्रॉपर मैंशन होएगा दैट सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अगर नहीं मैंशन तो सानू पता चल जाता है कि सेम टर्म्स दित्तियां होंदियां न्यूमरेटर डिनोमीनेटर जस्ट डिफरेंस कादा चलदा है इन्हां विच प्लस एंड माइनस का। सो कंपोनेंटो डिविडेंडो असीं अप्लाई किद्दां करना है, उपर वाली जो टर्म आ न्यूमरेटर उन्होंने असीं उपर भी लिखते हैं, एंड सेम उपर वाली टर्म नूं आपां डिनोमीनेटर दे विच भी लिखते हैं। न्यूमरेटर वाली जो टर्म आ पूरी दी पूरी इनू उपर प्लस पा के लिखा जाता है, एंड डिनोमीनेटर दे विच माइनस पा के लिखा जाता है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आ वाला साइन नहीं चेंज करना, ये तो पहला जोड़ा साइन लगेगा न्यूमरेटर च प्लस नाल लिखना है एंड डिनोमीनेटर च माइनस नाल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर ही 2/1 है, एवं नहीं करना है कि सिर्फ लैफ्ट हैंड साइड पर कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करता, बोथ साइड पर अप्लाई होना है। सो कंपोनेंटो डिविडेंडो की बोलता है न्यूमरेटर जी उपर वाली टर्म आ उन्होंने उपर भी लिखना है नीचे भी लिखना। डिनोमीनेटर वाली टर्म नूं उपर आप प्लस अप्लाई करके लिखांगे एंड नीचे आप माइनस करके लिखांगे। दैन जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करनी है, न्यूमरेटर चो सैकेंड एंड फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगी, एंड डिनोमीनेटर चो फर्स्ट एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके साडा आंसर आ जाएगा। ये जस्ट प्रोसेस है कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना किवें हुंदा है। आफ्टर दैट चैप्टर 8 है, दैट इज़ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की है, ये सानू कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं कह सकते, असीं इहदे विच प्रोसीजर्स नू फॉलो करते हैं बिकॉज ये थ्योरम्स आ। एक एक्सरसाइज में असीं रिमाइंडर थ्योरम स्टडी करते हैं, सैकेंड दे विच आपां फैक्टर थ्योरम जिहड़ी है स्टडी करते हैं, एंड सी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। सो इनू करन दे प्रोसीजर्स ने स्टैप्स ने उहदे लई वीडियोज़ है, तुसीं वो चेक कर सकते हो अगर किते डाउट होए, अदरवाइज इहदे लई कोई स्पैसीफिक फार्मूला जिहड़ा है वो नहीं है। नाउ मूव टू चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ मैट्रिसेस। लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। मैट्रिसेस इज़ व्हाट? It is a combination of rows and columns. So the one of the most important topic is order of matrix. सब तो important जो है इस चैप्टर विच, एंड सब तो फर्स्ट टॉपिक ही जोड़ा की आंदा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तुहानूं हर साल मोस्टली जदों दे MCQs ने एंड जो पहला भी सी उदों भी आंदा हुंदा सी, ऑर्डर जोड़ा आ वो बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है मैट्रिसेस दे सम्स नूं सॉल्व करन लई। सो ऑर्डर नूं फाइंड आउट करन दा फॉर्मूला की है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल we are given with this matrix, so इहदे विच rows इस साइड नूं मूव कर दियां, rows कितनी आ रही हैं 2 एंड कॉलम्स भी कितनी हैं 2। सो इहदा ऑर्डर कितना हो गया 2 × 2। सिमिलरली मान लो आ हो गया, फॉर्मूला की है नंबर ऑफ रोज़। सो रोज़ कितनी है, एक रो आ जा रही है, एक रो आ है,
2 एंड कॉलम्स कितनी है 1 2 3 सो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 into 3। एक चीज़ का ख्याल रखना है जो भी असी एडिशन या फिर सबट्रैक्शन करनी हुई सो ऑबवियसली एडिशन एंड सबट्रैक्शन दो मैट्रिसेस दे विच होएगी सिंगल विच तो हो नहीं सकती। सो इन्हां दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर की होना चाहिए है सेम अगर असी एडिशन या सबट्रैक्शन नू सॉल्व करना है तो इन्हां दे ऑर्डर्स की होने चाहिए आ सेम। इस तो बाद टाइप्स आंदी है मैट्रिसेस दियाँ। वेरी फर्स्ट टाइप इज़ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की होंदी है दैट कंटेन्स ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल आ गया जस्ट एक ही रो आ रही है सो आप इनू की बोलांगे रो मैट्रिक्स। सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स in which there is only one column। एग्जाम्पल होगी कॉलम मैट्रिक्स की। नैक्सट आती है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स की होंदी है जिहदे विच नंबर ऑफ रोज बिल्कुल सेम होन नंबर ऑफ कॉलम्स दी। फॉर एग्जाम्पल जिवें हुणे असी पिछे एग्जाम्पल पढ़ी सी 2 into 2 रोज भी 2 आ एंड कॉलम्स भी 2 ने सो ये वाली मैट्रिक्स नूं असीं की बोलांगे स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ columns। For example 1 2 3 3 4 5 we are given with 2 row but there are 3 columns so number of rows is equals to not equals to number of columns that means ਇਹੋ ਜਿਹੀ मैट्रिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ rectangular matrix। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ मैट्रिसिस 2 into 2 दियाँ हैं तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी की होएगी 2 into 2 दी। आइडेंटिटी का मतलब ही की आ कि जिहदे विच 1 टर्म्स होन 1 0 0 1 लीडिंग एलीमेंट्स जिहड़े आ 1 होन इनू यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नैक्सट वन इज़ जीरो मैट्रिक्स। एज द नेम सजेस्ट जीरो मैट्रिक्स की होंदी है सारे एलीमेंट्स की होंदे इहदे जीरो। इनू नल मैट्रिक्स वाइड मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोलिया जाता है। इस तो बाद लास्ट वन एक आती है साढ़े कोल डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स की है जिहदे लीडिंग एलीमेंट्स होन बाकी सारे एलीमेंट्स की होन जीरो उन्होंने असीं बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स। इस तो बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट आता है दैट हाउ टू सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन आता ही आता है एंड मल्टीप्लीकेशन किवें पॉसीबल होंदी है उहदे लई सानूं ऑर्डर का पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैट्रिक्स मैनूं आ दिती है एक मैट्रिक्स आए सब तो पहले फर्स्ट का ऑर्डर देखो फर्स्ट के 2 रोज आ एंड 2 कॉलम्स आ सो इसका ऑर्डर की है 2 into 2 बिकॉज ऑर्डर नू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होंदा है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर इहदा फाइंड आउट करना हो तो की आएगा 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो मैनू नहीं पता कि हुण इन्हां दोवां दी मल्टीप्लाई हो सकती है जां नहीं। सो किवें आइडेंटिफाई किया जाता है अगर दोनों मैट्रिक्स दियाँ आ वालियां टर्म्स जिहड़ियां सेम आ जान दैट मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स दी कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स दी रो। अगर आ दोनों एलीमेंट सेम आ दैन इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है एंड मल्टीप्लाई होने तो बाद जिहड़ी मैट्रिक्स बनेगी उहदा ऑर्डर कितना होएगा 2 into 3 दैट मीन्स वो भी कुछ एवें दी दिखेगी कि इधर 2 मैट्रिक्स होणगियां 2 रोज होणगियां एंड इधर 3 कॉलम्स होणगियां। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कदों पॉसीबल है सब तो पहला तुसीं वो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड आउट करने। अगर आ दोनों
एलीमेंट्स सेम हो गए, दैट मीनस कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक एंड रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक सेम है, दैन तुसी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉसीबल है। एंड जो मल्टीप्लाई करके जी मैट्रिक्स बननी है वह ऑर्डर की होएगा 2 into 3। एंड याद रखियो ए बी कदे भी बी ए इक्वल नहीं होंदा इन केस ऑफ मैट्रिसेस। इदा नहीं होएगा कि अगर तुम इनू फर्स्ट ते रखो उन्होंने सैकेंड ते रखो तो मल्टीप्लाई करके उही आंसर आए जो इनू फर्स्ट ते रख के इनू सैकेंड ते रख के आए। ए बी एंड बी ए कदे भी मैट्रिसेस दे विच इक्वल नहीं होंगे। नाउ मूव टू चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म दे विच असीं जिन्हों ए पी बोलते हैं। ए पी हुंदी की है, ए पी दी डेफिनेशन ही की है, डिस्टेंस बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms are same। like 2, 4, 6, 8 and so on, this is an AP because difference कहना चल रहा है सारे दे विच 2, similarly 3, 5, 7, 9 and so on। nth term ਲਈ formula use करते हैं ਅਸੀਂ, that is Tn is equal to a plus n minus 1d। एक ही फॉर्मूला है जोड़ा असी nth टर्म के लिए सॉल्व करते हैं। दैन सम ऑफ टर्म्स जो भी सम आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ ए पी, पहला ये ICSE ने डिडक्ट करता ही, बट जो लेटेस्ट सिलेबस आया है हम वो एक्सरसाइज करनी है। ये 10C के अंदर असी ये सामने स्टडी करते हैं जिद बोलते हैं फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पी। सो सम नूं सॉल्व करने के दो फॉर्मूले आ, फर्स्ट है n/2 2a + n - 1d। ये फॉर्मूला ही कदों लाने आ जो सानू a एंड d की वैल्यू का पता होए। एंड सेकेंड है s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a + l। ये फॉर्मूला ही कदों लाने आ जो सानू लास्ट टर्म का पता है। सो ये तुसी देखना है कि किहड़े सम दे विच दोनों विचों किहड़ा फॉर्मूला जोड़ा है असी अप्लाई करांगे। हुण सानू सारिआं नूं पता है Tn दैट मीनस लास्ट और nth टर्म, A इज़ फर्स्ट टर्म, D इज़ कॉमन डिफरेंस and n is number of terms। This is all about arithmetic progression। Last chapter of this unit is chapter number 11 that is GP, stands for geometric progression। geometric progression ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ डिवाइड करके चेक करते हैं। लाइक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माइनस करके चेक करीदा है 4 - 2 6 - 4 and 8 - 6। GP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिवाइड करके चेक करते हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ nth टर्म ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ARn - 1 where Tn is obviously nth term, A is first term and R here is common difference। ये आगे साढ़े कोल nth टर्म फाइंड करन दे लई इन केस ऑफ GP एंड ये भी सम सॉल्व करन लई साढ़े कोल की फॉर्मूला हुंदा है A इंटू 1 - r⁻n ओवर 1 - r। बुक दे विच वैसे दो फॉर्मूले मैंशन किए हैं। ये वाला फॉर्मूला आप उदों लाने जो r की वैल्यू <1 दैट मीनस नैगेटिव होए। एंड सैकेंड फॉर्मूला की Rn - 1 ओवर r - 1, ये कदों लाने जो r की होए ग्रेटर दैन। बट असी कैलकुलेशन करते टाइम अगर एक भी फॉर्मूला फॉलो कर लीए, कैलकुलेशन करते टाइम असी माइनस में खुद एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट डिफरेंस की है दोनों का, इधर r माइनस था इधर r प्लस था, सिमिलरली डिनोमिनेटेड। सो इन्नी के प्लस माइनस तो असी आप भी सॉल्व कर ही लें। अगर लर्न कर सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक फॉर्मूले के नाल भी हो जाएगा। एंड ऑफ अलजेब्रा। नाउ मूव टू यूनिट 3 that is coordinate geometry। chapter 12 रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12A बेसिक है वो 12B का। एंड 12B का जोड़ा क्वेश्चन आ
एक नहीं 2 क्वेश्चन जोड़े वो आते हैं। एक क्वेश्चन मेनली जो है 5 मार्क्स के आता है सैक्शन ए दे विच, एंड वो कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, आपको स्किप नहीं कर सकते। एंड वो जो क्वेश्चन है वो ए तो बी कंबाइन करके आता है। सो 12 बी पढ़ने के लिए 12 ए की जी बेसिक्स आ वो पता होनी ज़्यादा जरूरी है। एंड ये चैप्टर है भी बहुत ईजी। सो अगर इतने एक्स एक्सिस से रिफ्लैक्शन बोली गई है सानू, दैन असी वाई चेंज करते हैं। अगर वाई एक्सिस की रिफ्लैक्शन बोली है दैन असी एक्स चेंज करांगे। एंड अगर ओरिजिन से रिफ्लैक्शन बोली है तो असी बोथ कोऑर्डिनेट्स चेंज करांगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन विथ 2 × 5, सानू पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स का होंदा है, सैकेंड कोऑर्डिनेट हमेशा वाई का होंदा है। अगर मैं इनू एक्स एक्सिस से चेंज करना होए तो कौन चेंज होंदा है? वाई। चेंज इन द सेंस अगर वो प्लस है तो असी उन्होंने माइनस का कर देंगे, अगर वो माइनस है तो अं उन्होंने प्लस का कर देंगे। सिमिलरली अगर इसी पॉइंट मैं चेंज करा वाई एक्सिस से, वाई तो कौन चेंज होंदा है? एक्स। एक्स इतने 2 है तो इधर आके की हो जाएगा -2। एंड सेम चीज़ नू अगर मैं ओरिजिन से सॉल्व करा तो ओरिजिन च दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अगर दोनों प्लस थे तो दोनों कादे हो जाएंगे माइनस थे। एक चीज़ का ख्याल रखना है, वाई एक्सिस आ दैट मीनस सिर्फ वो साड़ी एक्स नू अफैक्ट करेगी, वाई तो कोई लेना देना नहीं होता, वाई दे नाल कुछ नहीं होएगा, चेंजेस जिवें है उवें असीं उहनूं लिख देना। सैकेंड एक्सरसाइज जिहड़ी इहदी वो टोटली ग्राफ है। एंड सैक्शन ए दे विच लास्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के विच ग्राफ वाला है, जिहदे विच ए एंड बी दे मिक्स क्वेश्चन होंदे आ। एंड लास्ट से ग्राफ बनता ही बनता है। सो ईजी भी आ, सो स्कोरिंग भी है, इनू अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। वाई दे लिए फार्मूला बिल्कुल सेम है, जस्ट अं की करते हैं कि एक्स की जगह पर अपने वेरीएबल चेंज कर दें वाई, वेयर एम एंड m2 ये साड़ी रेशो चलती है। सो जो भी सूँ रेशो दी हुई लाइन सेजमेंट का क्वेश्चन हो भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हों तो असी सैक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। कदों? जो सूँ रेशो दी हुई या रेशो फाइंड आउट करनी हुई। हुण अगेन ये वाली रेशो नूं अपने 7 चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन च मिक्स नहीं करना, उहदे विच पर्टिकुलर प्रपोर्शन मैंशन होएगा। एंड इहदे विच तुहानूं लाइन सेजमेंट्स वगैरह दित्तियां होणगियां, कोऑर्डिनेट्स दित्ते होणगे। सो उहदे तो असीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सैक्शन फार्मूला जिहड़ा है अपलाई होएगा। सेकेंड इज मिड पॉइंट फार्मूला। फॉर एक्स दिस इज x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड फॉर वाई इट्स y1 प्लस y2 ओवर 2। मिड पॉइंट है एंड मिड पॉइंट असीं एवें सॉल्व करते हैं। एक होर यूज़ होंदा इहदे विच फार्मूला दैट इज सेंट्रोइड का फार्मूला है। वो की होएगा जस्ट उहदे विच 3 टर्म्स आ जाएंगे। वाई? बिकॉज सेंट्रोइड जोड़ा है ट्रायंगल का होंदा है एंड ट्रायंगल की 3 साइड्स होंदियां एंड 3 वर्टिसेस होंदे हैं। सो वाई लिखी हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। Last chapter of this unit is chapter number 14, that is equation of line। सब तो फर्स्ट कंसैप्ट आता है ये स्लोप का। स्लोप नू फाइंड आउट करन दे बहुत सारे फार्मूले है साडे कोल। किहड़ा फार्मूला किवें कित्थे अप्लाई करना है वो असीं अपनी सेंस दे नाल देखना हुंदा है। सब तो फर्स्ट फार्मूला की आंदा है m इज इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर m इज़ आर स्लोप। ये फार्मूला असीं कदों अप्लाई करना है? जो मैंने थीटा की वैल्यू गिवन दी हुई, मैंने थीटा की वैल्यू का पता होए। सेकेंड फार्मूला आंदा है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला असीं उदों अप्लाई करते हैं जो सानूं 2 पॉइंट्स दिते होण। 2 पॉइंट्स या 1 पॉइंट भी दिता होवे, सैकेंड पॉइंट फाइंड आउट करने का कोई ना कोई मैथड दिता होंदा है उन्होंने। दैट मीनस जो पॉइंट्स दिते हुए एंड स्लोप फाइंड करनी हुई दैन असीं आ फार्मूला अप्लाई करांगे। थर्ड होंदा है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। ये स्लोप का फार्मूला असीं उदों यूज़ करते हैं जो सानूं इक्वेशन गिवन हुई। सो ये 3 फार्मूले हैं स्लोप नूं सॉल्व करन दे। किहड़ा कित्थे अप्लाई करना है वो तुसीं देखना है। थीटा दिता है तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा,
पॉइंट्स गिवन आ तो आ फॉर्मूला लगेगा। इक्वेशन दी है तो इक्वेशन इस फ्रेम तुसी लैके आना है कि वाई वाले टर्म्स एक साइड होन बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड होन। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होएगा वो तुहाडी स्लोप होएगी। नैक्सट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का वो की है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला की है y minus y1 is equals to mx minus x1 where x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ y ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। m ਸਾਡਾ ਸਲੋਪ ਹੈ, x1 y1 ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। x ਐਂਡ y ਨੂੰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So let's start our next unit, that is unit number 4th geometry। geometry ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 that is similarity। similarity ਦੀ ਅਗਰ basic definition ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ similarity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, two figures are said to be similar if they have same shape but different size। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ two figures are said to be similar। for example both are triangle, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ these two triangles are similar। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ, ਨਾਟ ਇਨ ਆਰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਬਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਂਗਲਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਂਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਵਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਗਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਗਲਸ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਨ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC ਐਂਡ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ADE, ਸੋ A ਐਂਡ A ਕਾਮਨ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ ਫॉर ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ। ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर प्रूव हो गए ट्रायंगल DEF दे, सो इन्हां दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जिहड़ियां प्रपोर्शन हो जांदियां। फॉर एग्जाम्पल इन्हां दे साइड्स नूं किवें लिखांगे AB
ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਹੀ DE। ਸਿਮਿਲਰਲੀ BC ਐਂਡ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ EF ਐਂਡ ਦੈਨ AC ਓਵਰ DF। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਇਵੇਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ 2 फिर सेकेंड थर्ड एंड देन फर्स्ट थर्ड। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर 16 लोकस, जो इस बार ऐड हो गया है ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। इट्स टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, लाइक प्रोसीजर काम करेगा ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 8th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 17 that is circle। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੀਜ਼ ਆ, ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ, ਕੁਝ ਥਿਓਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਰਕਲ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਲ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੌਰਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ। अगर मैं बोला OA तो ये भी की है रेडियस, अगर मैं बोला OB ये भी की है रेडियस, अगर मैं बोला OC तो आ भी की है रेडियस। दैट मीन्स ये तो मेरा सब तो फर्स्ट रिजल्ट निकलेगा दैट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर सेम और इक्वल। दैट मीन्स एक सर्कल के जिन्ने मर्जी रेडियस बना लो, सारे रेडियस आपस के की होंगे आ सेम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ऑलमोस्ट हर सम दे विच यूज़ होंदा है वो की है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। थर्ड, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਲ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਫ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗਲ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਦ ਐਂਗਲ ਐਟ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਲੇਬਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਗਲ ਐਟ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ is always equals to 90 degree। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ it's all about circle। Next is tangent and intersecting chords। tangent and intersecting chord ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, the tangent at any point the tangent at any point and the radius through this point are perpendicular to each other। थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, टेंजेंट की आ कोई भी लाइन जो साडे टेस्ट सर्कल नूं टच करके पास हो रही है, उन्होंने कट नहीं कर रही,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਜੈਂਟ। ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਐਜ਼ ਜਨਰਲ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ OP ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ AB। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਗਲਸ ਦਾ। ਐਂਗਲਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਉਸੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ 'ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, if two tangents are drawn on a same circle, अगर एक सर्कल ਦੇ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਲੈਂਥ। ਫॉर एग्जाम्पल ਇੱਕ सर्कल है तो मैं ਇਹਦੇ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾਤੀ, एक आ टेंजेंट हो गया टच करके पास हो रहा है, एक आ टेंजेंट हो गया, दैट मीनस PA इक्वल किहदी होएगा, PB दे। दैट मीनस इन्हां दोनों की लेंथ आपस में की होएगी, इक्वल। फर्स्ट एक्सरसाइज दे विच सिर्फ यही है। इस तो बाद सैकेंड एक्सरसाइज जो है उहदे विच की होएगा कि सानू उन्होंने टर्म्स दे दित्तियां जाणगियां, लाइक कॉर्ड्स दे रिलेटेड चलेगा एक्सरसाइज 18B दे अंदर। अगर वो कॉर्ड्स जिहड़ियां ने इंटरनली इंटरसैक्ट हो रही हैं एक सर्कल के अंदर, मान लो एक कॉर्ड होगी AB, एक होगी CD एंड इन्हां दे इंटरसैक्टिंग पॉइंट हो गया P। रिजल्ट की बनेगा PA इंटू PB। सेम लाइन कंप्लीट करनी है, पहला PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। बट अगर कॉर्ड्स जिहड़ियां ने वो इंटरसैक्ट करनगियां एक्सटर्नली, दैट मीनस सानू एक सर्कल दे दिता जाए एंड एक कॉर्ड आओगी फॉर एग्जाम्पल एंड एक कॉर्ड आओगी। अगर ये बाहर जाके किते मीट कर रही हैं सर्कल तो एक्सटर्नली आ, दैन की होएगा, फॉर एग्जाम्पल कॉर्ड्स अगेन सेम आ AB एंड CD एंड जिथे इंटरसैक्ट कर रहे हैं पॉइंट P आ, फॉर्मूला सेम रहेगा PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। चेंजिस कितने आएगा, PA पूरी लेंथ काउंट होएगी, पहला साड़ी हाफ लेंथ होंदी ही, PA हाफ लेंथ, PB हाफ लेंथ। बट अगर एक्सटर्नली कर रहा है दैन PA इंक्लूड्स PB, दोनों ने इंक्लूड करेगा। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि PA आ सारी चीज़ की लेंथ आनी है एंड PB सिर्फ आ हाफ टर्म की लेंथ आनी है, बाकी फॉर्मूले दे कोई चेंज नहीं होएगा। सिमिलरली की है कि अगर तुहानू एक कॉर्ड दे दी जाती है एंड एक टेंजेंट दे दिता जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, एक कॉर्ड है बट एक टेंजेंट है, इवें इंटरसैक्ट हो रही है। कॉर्ड AB ले लो, इनू T टेंजेंट ले लो, P हो गया, तो इसका फॉर्मूला की बनेगा, आ सेम रहेगा PA इंटू PB, नो चेंजेस। बट PT टेंजेंट का की हो जाएगा स्केयर, बिकॉज सिंगल क्वांटिटी चल रही है PA एंड इधर डबल है PA एंड PB। सो आप की कर देंगे PT का स्केयर। नेक्स्ट चैप्टर 19 ऑल बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ऑल बेस्ड ऑन understanding and procedures. Now move to chapter number 20, that is cylinder, cone and sphere. सिलेंडर कोन एंड सफेयर दे विच की आ, तीन टर्म्स आ ते तीनों टर्म्स दे अपने अपने फार्मूले जिहड़े ने वो चलणगे।
सिलेंडर अगों 2 टाइप्स का जोड़ा आ वो असी पढ़ांगे। एक होएगा सॉलिड सिलेंडर एंड एक जोड़ा होएगा हॉलो सिलेंडर। दोनों के फॉर्मूलेस दे विच ज़्यादा नहीं डिफरेंस आएगा, जस्ट ये एक सिंगल आर होएगा सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर दे विच एक कैपिटल आर होएगा एंड एक स्मॉल आर होएगा। सो फिलहाल दे लई असीं सिर्फ सॉलिड सिलेंडर दे जिहड़े आ फॉर्मूले डिस्कस करांगे। उहदे तो असीं सीख लवांगे कि हॉलो सिलेंडर दे फॉर्मूले जिहड़े आ उन्हां नूं किवें फ्रेम करना है। सो अगर असीं गल करिए सब तो फर्स्ट फॉर्मूला जिहड़ा है सिलेंडर दा दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला की है पाई आर स्केयर एच। आर इज़ रेडियस, एच इज़ हाइट एंड पाई की वैल्यू सानू पता है 22/7। कर्व्ड सरफेस एरिया जिन्होंने असीं CSA दे नाल डिनोट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला की है 2πRh। अगेन आर एंड एच इज़ रेडियस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। टोटल सरफेस एरिया that is 2πr into r plus h। ये तीन फॉर्मूले हैं जिहड़े वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दे हैं जो असीं वॉल्यूम दे पढ़ने हैं। इसे दे नाल कुछ होर फॉर्मूले दिते गए लाइक एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन एंड पैरीमीटर ऑफ क्रॉस सैक्शन दिता गया, उन्होंने भी तुसीं स्टडी करना है बिकॉज जो असीं सिलेंडर की डायग्राम ही पढ़ते हैं ना तो हाइट एंड रेडियस तो कंसीडर हो जाता है, बट जो सरकमफ्रेंस है ना जो ये बन रहा है ये सैपरेट फॉर्मूलेज दिते जाते हैं क्रॉस सैक्शनस के लिए। सो उन्होंने भी स्टडी करना है। अगर कई सम्स दे विच सिर्फ इन्हों चो आप कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी हुई फिर उन्होंने जरूरत सानू पैनी है। ओके अगर होलो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला फ्रेम करना है तो जस्ट की आएगा पाई एज इट, जिमें दो आर है सो उत्थे की आ जाएगा कैपिटल आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर एंड एच एज इट। होर कोई डिफरेंस नहीं होएगा इन्हां टर्म्स दे विच। नैक्सट अगे करते हैं कोन। कोन दे अंडर की है हुण कोन बनदी किदां है। कोन जिहड़ी है वो साडे राइट एंगल ट्रायंगल तो ही बनदी है। फॉर एग्जाम्पल आ साडा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर मैं दूसरी साइड नूं एक्सटेंड कर दा तो ये तो की आ मेरी कोन बन जाएगी। सो जिथे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल मैनूं मिलता है उहदे ते पाइथागोरस लर्निंग थ्योरम लाजमी आ, उत्थे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ही लगेगी। ओके सो ये टर्म्स नूं स्टडी करते हैं। आ साडी कोन की हाइट होगी, आ साडी कोन का रेडियस हो गया एंड आ वाली साइड नूं असीं की बोलते हैं स्लैंट हाइट जिन्होंने असी एल दे नाल डिनोट करते हैं। सो पाइथागोरस अप्लाई की जाए तो साढ़े को रिलेशन क्या आएगा हाइपोटेन्यूज 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होंदा है दैट इज़ एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर। ये फॉर्मूला यूज़ होएगा कोई भी अननोन क्वांटिटी नूं फाइंड आउट करने के लिए जिहदी सानूं जरूरत होई। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने तुहानूं एल एंड एच दिता है बट तुहानूं जरूरत जो है आर दी है। सो आपां ये फॉर्मूले दे नाल इहदे विचों आर दी वैल्यू नूं फाइंड आउट करांगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला की है 1/3 पाई आर स्केयर एच। आर इज़ रेडियस, एच इज़ हाइट। टोटल सरफेस एरिया की है इहदा पाई आर इंटू एल प्लस आर। हेयर एल इज़ अ स्लैंट हाइट दैट मीन्स जो भी साडी स्लैंट हाइट चल रही होगी एंड कर्व्ड सरफेस एरिया की है पाई आर एल। ये तीन फॉर्मूले हैं जिहड़े असीं स्टडी करने हैं कोन दे अंदर। लास्ट कॉन्सैप्ट जो है सफेयर, पिछले टाइम कट सी सफेयर का टॉपिक बट इस सारे इंक्लूड हो गया। सफेयर का वॉल्यूम की है 4/3 पाई आर क्यूब एंड ये सरफेस एरिया लिए की है 4 पाई आर स्केयर। ओके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 दैट मीन्स नेक्स्ट यूनिट ट्रिग्नोमैट्री ते पहला भी वीडियोज़ बन चुके हैं ये फॉर्मूलेज नूं लैके। जस्ट बेसिक टर्म्स दसियां ही कि जो भी असीं ट्रिग्नोमैट्री दे सम सॉल्व करने आ सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज नूं अपने माइंड च रखना है कि साइन नूं एंड कॉज नूं असीं कदे भी स्टार्टिंग दे विच चेंज नहीं करदे।
ऑलवेज ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕਾਜ਼ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ 1/sin ਥੀਟਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ 1/cos ਥੀਟਾ। tan theta can always be rewritten as sin theta over cos theta, and cot theta can be rewritten as cos theta upon sin theta. Always यही terms ਦਾ यूज़ करांगे। then scale relation ਤੇ आ जाओ, sin square theta plus cos square theta always equals to 1। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 1 ਪਲੱਸ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 + tan ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਲਾਈਕ 72 ਡਿਗਰੀ 35 ਡਿਗਰੀ 46 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, sin 90 - theta always converted into cos theta and cos 90 - theta always equals to sin theta. Similarly, cosecant 90 - theta always equals to secant theta and cot 90 - theta always equals to tan theta. जस्ट यही है ट्रिग्नोमैट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ 22 ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ तो फिर केड़ा फॉर्मूला अप्लाई होएगा, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उस दे नाल ही असीं एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो इत्थे साडे कोल साइन दी वैल्यू जिहड़ी है वो की आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस दी वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टैन दी वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन्हां सम्स दे विच तुसीं बस यही ख्याल रखना है कि आपां जिहड़ियां भी रेशोज़ बनाईए हमेशा इन्हां तिन्नां चों ही कोई बनाईए, इन्हां दे रेसिप्रोकल्स वाल ना जाओ। रेसिप्रोकल्स वाल जाओगे कन्फ्यूजन वधणगी, कैलकुलेशन वधेगी, सम च गड़बड़ हो जानी है। सो साइन कॉज एंड टैन इन्हां चों जिहड़ी भी रेशो बन रही है वो तुसीं अप्लाई करो। इस दे नाल नैक्सट चैप्टर 23 टोटली बेस्ड ऑन ग्राफ वर्क, सिर्फ ग्राफ आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 9th ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਓਗਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਰਵ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 24 ਇਜ਼ ਮੀਨ, ਮੀਡੀਅਨ ਐਂਡ ਮੋਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ दैट मीनस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, तो ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ x ਓਵਰ n, ਵੇਅਰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸਮ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। सेकंड वन इज़ डिस्क्रीट सीरीज़।
डिस्क्रीट सीरीज़ की है, ये सानू एक एक्स दिता होएगा एंड नाल ही फ्रीकुएंसी दी होएगी। चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ होए चाहे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ होए। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ किहड़ी हुंदी है जिहदे विच मैनूं क्लास इंटरवल्स गिवन होण। एंड उहदे नाल फ्रीकुएंसी भी गिवन होए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। डायरैक्ट मैथड की होंदा है एक्स बार इज़ इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। सेकेंड वन इज़ शॉर्टकट मैथड। शॉर्टकट मैथड की है एक्स बार इज़ इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ वेयर ई इज़ एज्यूम्ड मीन। ऑलवेज असी इनू एक्स वाली लाइन चो कंसिडर करते हैं एंड डी नू किवें सॉल्व करीदा है एक्स माइनस ए। एंड थर्ड वन इज़ स्टेप डेविएशन मैथड। स्टेप डेविएशन मैथड का फॉर्मूला की है एक्स बार इज़ इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ टी ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई आई। ए अगेन इज़ एज्यूम्ड मीन। टी इज़ इक्वल नू किद्दां सॉल्व करना है डी ओवर आई एंड डी नू किद्दां सॉल्व करना है सेम एक्स माइनस ए। आई की होएगा डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। सो अगर तुहानूं पर्टिकुलर मैंशन किया होया है कि सॉल्व दिस टर्म विद स्टैप डेविएशन मैथड तो तुसीं स्टैप डेविएशन मैथड दे नाल अप्लाई करोगे। अगर कुछ नहीं बोलिया गया सिंपल फ्रीकुएंसी वाला क्वेश्चन दिता है तो उन्होंने बोलिया फाइंड मीन। सो प्रेफरेंस दिओ डायरैक्ट मैथड नूं बिकॉज वो सिंपल होंदा है। सब तो सिंपल मैथड किहड़ा चलदा है डायरैक्ट मैथड, उन्होंने प्रेफरेंस दिओ। नैक्सट आ जाओ मीडियन ते। मीडियन के लिए भी सेम 3 सीरीज़ आनगियां। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज़ पहचान हुई ही है। इंडिविजुअल सीरीज़ लिए सब तो फर्स्ट स्टेप की है अरेंज शेयर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के डिनोट होने तो बाद चेक करो काउंट करो कि तुहाडियां नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ या तुहाडियां नंबर ऑफ टर्म्स ईवन आ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ तो फॉर्मूला की लगाओगे मीडियन इज़ इक्वल्स टू n + 1 ओवर 2 सो दैट ईवन बन जाए। दैट्स वाई असी की करता +1 करता एंड इट्स टर्म। एंड अगर ईवन आ तो फॉर्मूला की लाओगे n/2 सॉरी 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ आ डिस्क्रीट दैट मीन्स एक्स भी गिवन आ एंड फ्रीकुएंसी भी गिवन आ दैन तुसी सब तो फर्स्टली की फाइंड करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी। 9th विच असीं सीखिया है कि असीं क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी नूं किद्दां सॉल्व करदे हां। आफ्टर दैट अगेन अगर तो ईवन आ तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा n/2 और अगर ऑड है दैट मीन्स तुहाडा जो भी एफ सॉल्व करके आया है इहदा ईवन एंड ऑड चेक करना है। अगर ईवन है तो n/2 ऑड होएगा तो +1 कर देना। एंड जो इहदा कॉन्टीन्यूअस है मीडियन के लिए कॉन्टीन्यूअस इज़ बेस्ड ऑन ग्राफ। इहदे लिए ओ गिव ड्रॉ होएगा एंड उस तो पहला जो भी तुसी पहला पढ़िया है लाइक डिस्क्रीट दे विच करना है वो सेम ही सॉल्व करांगे बस उस तो अगे ही जिहड़ा है ग्राफ ते अपना वर्क करना है। लास्ट वन इज़ मॉड अगेन फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ if we are given with this kind of series then our mod is 2 that means most occurring term
ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ज़्यादा वार आ रही है वो साडा मॉड होएगा। कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ज़्यादा वार रिपीट हो रही है वो की होएगा साडा मॉड। फॉर डिस्क्रीट सीरीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 12। 12 ਦਾ ਐਕਸ ਕੌਣ ਹੈ 7, ਸੋ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 7। ਐਂਡ ਫॉर ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਮ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡਰਾ mod in graphically representation. And our last chapter is chapter number 25, that is probability. Most basic formula of probability is favorable cases over total number of cases. So favorable cases over total number of cases. Remember that probability of any event always lies between 0 to 1. It cannot be negative or cannot be greater than 1. So probability always lie ਕਰੇਗੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस जो है वो मेनली वर्क करती है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। सैंपल स्पेस 1 कॉइन ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सैंपल स्पेस मतलब ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟਰਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕॉइन ਨੂੰ ਟਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ सैंपल स्पेस ਕੀ ਆਏਗੀ head and tail. Either it occurs with head or either in with tail. Second one is 2 coin. अगर 2 coin है, दो अलग अलग persons ने एक एक coin पिक किया है तो उन्होंने सैंपल स्पेस की बनेगी head head, head tail, tail head and tail tail। इन्होंने बनाने का प्रॉपर एक प्रोसीजर होंदा है, वो फॉलो करके असीं इनू ईजीली बना सकते हैं। एंड फॉर 3 coins इट विल बी लाइक असीं इनू ट्रिक दे नाल बना लईदा है। 4 हेड लिख ले पहला, दैन 4 टेल लिख ले, 2 हेड एंड 2 टेल, अगेन 2 हेड एंड 2 टेल, लास्ट दे आल्टरनेटिव हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल। ये 8 केस जोड़े बनते हैं, साड़ी सैंपल स्पेस बनती है फॉर 3 coins के लिए। सिमिलरली डाइस का क्वेश्चन भी आता है। डाइस की सैंपल स्पेस के अगर 1 डाई है तो ओबवियसली सानू पता है वो 6 नंबर होंगे। एंड अगर 2 डाइस आ तो वो 36 नंबर की सैंपल स्पेस थोड़ी बुक में है वो वाली बनती है। दैन इंपॉर्टेंट वन इज प्लेइंग कार्ड्स का कॉन्सैप्ट चलता है। प्लेइंग कार्ड विच की है 4 कैटेगरी दे विच साडी टर्म्स डिवाइड होंदियां ने, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स। स्पेड्स एंड क्लब्स आर ऑफ ब्लैक कलर एंड डायमंड एंड रेड इज़ ऑफ रेड कलर। हर एक दे विच 13 कार्ड्स होंदे ने एंड टोटल कार्ड्स किन्ने हो गए 52। सो ब्लैक दे अंडर स्पेड भी आ, क्लब भी आ। स्पेड कोल भी 13 कार्ड आ, क्लब कोल भी 13 कार्ड आ। सो ब्लैक कोल कितने कार्ड हो गए 26। सिमिलरली इन्होंने दोनों को भी 13 आ तो रेड के कोल कितने कार्ड हो गए 26। हुण 13 कार्ड्स बनते किवें आ, हर एक दे कोल 2 तो लैके 10 तक की काउंटिंग के कार्ड्स होंदे आ। आफ्टर दैट J, K, Q एंड A, एक आ 4 कार्ड होंदे आ। इहदे विच J, K एंड Q ये मिल के बनाते हैं फेस कार्ड्स। सो हर एक कोल 4 कोल 3 पत्ते इहो जे आ जिहदे विच फेस कार्ड्स होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स साडे कोल किन्ने आ गए 12। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फार्मूलाज। सारे फार्मूले जिहड़े असीं डिस्कस कीते आ, जस्ट ये आ कि असीं उहनूं पूरा उन्नी कुछ चैप्टर्स दे जिहड़ी लाइक जोमैट्री दे फार्मूलेज हो गए पूरा ब्रीफली नहीं गए, उन्होंने असीं नैक्सट वीडियो दे विच जरूर पढ़ांगे। तद तक दे लई अपने चंगी तरह सारे फार्मूले जोड़े ने टिप्स से रखो। फार्मूलेज टिप्स से होंगे तो साड़ी प्रैपरेशन जी उतों ही स्टार्ट होएगी जी असी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए करने। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।